जब भी मैंने जिससे भी बात की कि मैं नोएडा मतलब उत्तर भारत में एक फिल्म सिटी खोलना चाहता हूं, तो लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा, पागल समझा। उन्होंने समझा कि ये होश खो बैठा है। Hello everyone, this is Mini Bhatia. For today's interview, we have a very known personality from the field of media and entertainment, who is the founder of Noida Film City and Marva Studios, founder of Asian Academy of Film and Television, which is now one of the 10 best film schools in the world, who has 7 world records to his credit. Welcome, Mr. Marva. वंडरफुल। How are you, sir? जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फाइन, थैंक यू। थैंक यू सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि आपका कोविड का पेंडेमिक का पीरियड कैसा निकला? अरे बाप रे, 11 महीने आप घर में बंद हैं। The fact is जी that I think this is the toughest time I have ever seen in my life. Because I'm a traveler basically, and I attend a lot of events, a lot of functions. I'm a workaholic. I was missing my office like anything. I was missing my people, my staff, my colleagues, my friends, and especially the people around the world. And the first thing which I had to do is I had to cancel my 3 foreign trips, which were scheduled and designed by 3 different countries. I still remember Myanmar, Vietnam, Cambodia. So this one trip was for March, April, and May. So I was feeling very let down to start with, but then yes, you have to adjust with time. You have to cope up with the circumstances. You have to plan and replan your schedules. You have to think much above ahead than what you can even think of. And I think pandemic has taught you many things. Exactly. This pandemic taught us very much. So the next question I would like to ask: what is the biggest factor that helped you to be successful? Oh, am I? Yeah, you are. Well, I'm a hardcore worker. I'm a learner, and but I always keep my spirits high. I'm a quite enthusiastic person, and I love learning. The most important thing in life is that you have to behave like a student. It's very important that you should be broad-minded, and you should have the attitude and aptitude to learn perhaps new things. If you can adjust with time, probably you will be able to succeed in your life, because the only thing which is constant on this earth is the change, and you have to change with time. That's very important. इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ कि हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ। जमाने के साथ साथ क्या बात है सर। सर, जो हमारा यूथ है उसमें एक मिथ रहता है कि जो सक्सेसफुल हैं उन्हें ये विरासत में मिला है। वो ये नहीं सोचते कि आप जिस लेवल पे पहुंचे हैं आप भी एक जर्नी तय करके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मैं आपकी वो जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ जिससे कि हमारा यूथ इंस्पायर हो। देखिए मैनी जी के द फैक्ट इज दैट इफ आई रियली वांटेड टू live comfortably, probably my father had worked very hard for all the comforts of life for us. मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा अलग रखा। मुझे लगा कि जो हमारे पिताजी ने इतनी कड़ी मेहनत करके, इतना काम करके हमें इस मकाम तक पहुंचाया है, मज़ा तब आएगा जब हम इससे एक अगले स्टेप तक पहुंच पाएंगे। अगर हम लोगों ने वही रोजी रोटी को ढूंढते रहे और दाल रोटी के चक्कर में रहे, तो प्रोबेबली हमें जिंदगी भर रोटी कमाने की जरूरत नहीं होगी, या उसका फिक्र नहीं होगा। लेकिन हमने क्या किया इसका पछतावा होगा आगे जाकर अपनी बड़ी उम्र के अंदर।
तो वहां से जो क्रिएटिविटी थी, वॉट एवर आई लर्नड इन माई स्कूल, माई कॉलेज, माई सर्कमस्टांसेस, माई एजुकेशन, माई टीचर्स, माई पेरेंट्स, I'm definitely indebted to my parents. I'm indebted to my teachers, my institutions, that I have been brought up in such a manner that I could add on a lot of creativity to my work. And that has kept me alive, enthusiastic, and hardworking. Very important. And that's the reason that I could think of creating a film city for North India. वरना मैं भी लगी लुगाई दुकानों पर जाता और गद्दी पे जाके बैठ जाता, दफ्तर में जाता, कमरा की चाबी खोलते और बैठते दरवाजा खोल के, वही काम करते रहते जो चल रहा था. तो दिस न्यू प्रोजेक्ट, very challenging, very appealing to me, but absolutely impossible for people to believe. जब भी मैंने जिससे भी बात की कि मैं नोएडा, मतलब उत्तर भारत में एक फिल्म सिटी खोलना चाहता हूं, तो लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा, पागल समझा. उन्होंने समझा कि ये होश खो बैठा है, ये एक इसको फिल्मी कीड़ा काट बैठा है. That kind of things were coming, but then the fact is that I was adamant. I was very sure about what I had to do that time, and I'm very happy that I met the chairman of Noida that time, and he was excited, overwhelmed with the project which I gave for Noida Film City. It took around about a year for that project to clear from the authority. It took 3 years to build up the infrastructure, and it took years to actually establish Marva Studios. It was not that easy. जिस शहर में, जिस उत्तर भारत के अंदर ना फिल्म का कल्चर था, ना फिल्म वाले थे, ना फिल्म की सोच थी, लोग आए दिन कभी कभी 6 महीने, साल, 2 साल में एक शूटिंग देखा करते थे. दिल्ली में होती थी और इंडिया गेट में अगर शूटिंग होती थी तो वहां पर तांता लग जाता था. लोग पत्थर उठाकर हीरो और हीरोइन को मारते थे. ये मेंटेलिटी कि देखो मेरा पत्थर हीरो को लग गया, कि मुझे याद रहेगा जिंदगी भर कि मेरा पत्थर उसको लग गया. तो वो मैंने तो वो चीजें भी देखी. और भीड़ होती थी, आप शूटिंग के दौरान उस सर्कल के अंदर भी नहीं पहुंच पाते थे, दूर से ही देख रहे थे किसी फिल्म सितारे को, फिल्मी स्टार को, और घर आके आप कहते थे कि साहब मुझे धर्मेंद्र ने आज अपनी शूटिंग पे बुलाया हुआ था. तो आई कुड सी द एक्साइटमेंट, और कैसे लोग अपनी कहानियां और गप्पे बनाते थे. तो मुझे लगा अगर इतना क्रेज है, अगर इतनी सोच है और इतना प्यार है लोगों को इस इंडस्ट्री से, तो उत्तर भारत में ये होना ही चाहिए. बल्कि मैं तो और ज्यादा हाथ धो के पीछे पड़ गया. और मुझे खुशी है कि नोएडा फिल्म सिटी बन के तैयार हुई. ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो. और इन 16 स्टूडियो में से अभी करीब 350 चैनल प्रसारित हो रहे हैं, करीब 162 मुल्कों में. 17,000 लोग यहाँ पर काम करते हैं और करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का हसीन मौका मिला है. तो क्या इस जर्नी को तय करने में आपने कोई गलतियां भी की हैं जिससे कि आपको सीख मिली? गलतियां ये कि सबसे बड़ी गलती कि मैं बड़ा रिजिड था, बड़ा एडमेंट था, झुकने को तैयार नहीं था, जो बाद में मेरी क्वालिफिकेशन गिनी गई. क्योंकि अगर मैं ढह जाता, गिर जाता, झुक जाता, मान जाता, तो हो सकता है कि फिल्म सिटी नहीं आती, सिर्फ मारवा स्टूडियो होता. हो सकता है फिल्म स्कूल नहीं होता, जो आज एक अपना अच्छा मकाम खुद हासिल किए हुए है. तो क्या होता, क्या नहीं होता, मुझे लगता है कि ये इन बातों पे तो मैं नहीं जाता, क्योंकि जो होना होता है फिर वो होके ही रहता है. और गलती एज सच ऐसी कुछ नहीं थी, क्योंकि जिस माहौल से आप गुजर रहे होते हैं, जिस रास्ते से आप चल रहे होते हैं, अगर उसमें कुछ टोया, कोई गड्ढा, कोई पानी, कोई नदी, कोई नाला, कोई रोड़ा, पत्थर, कंकर, पहाड़ आता है, तो उसे पार करना ही होता है. उसे आप अपने रास्ते का, अपने सफर का हिस्सा उसको मान लेना चाहिए, वही बेहतर है. पहाड़ ना होता तो मैं, अगर वो ना होता तो शायद यही ना होता. तो वो, मैं इन चीजों में विश्वास ही नहीं करता. मुझे लगता है कि जो कुछ भी मुसीबतें आई, जो कुछ भी डिसीजन लिए गए, वो उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से शायद सबसे अच्छे रहे होंगे, तभी हम आज यहाँ पर पहुंचे.
आपने अपनी लाइफ में सबसे डिफिकल्ट डिसीजन, सबसे हार्ड डिसीजन क्या लिया होगा? मैं समझता हूँ कि मेरी एजुकेशन अच्छी रही। मैं अपने मदर और फादर को जितनी दफ़ा भी सर झुक के प्रणाम करूँ शायद कम है, क्योंकि मेरे फादर हमेशा मुझे ये कहते थे कि बेटा हम लोग आप लोगों को बहुत कुछ तो नहीं दे सकते, ज़िंदगी की बेसिक कम्युनिटीज़ आपको मिल चुकी हैं और अगर सबसे ज़्यादा आपको मुझसे कोई अपेक्षा है, आशा है, तो वो आपको होनी चाहिए कि आई शुड बी एबल टू गिव यू बेस्ट ऑफ द एजुकेशन पॉसिबल। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे फादर ने, मेरे मदर ने मुझे पढ़ने से कभी नहीं रोका, हमेशा मोटिवेट किया। हम लोगों ने जो भी काम किया, उसके लिए उन्होंने प्रोत्साहित ही किया। तो शायद यही ज़रूरी था उस वक़्त। तो एजुकेशन जो है दैट इज़ योर बिगेस्ट एसेट दैट एवरीवन शुड नोट डाउन। क्योंकि जो ज्ञान है वो आपका अपना है, बाकी हर चीज़ जो है वो पराई है। अगर आप दोबारा से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहें, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे? जो चीज आपको लगता है कि आपने ये मिस कर दी अपनी लाइफ में। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि हकीकत ये है कि हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग है, वो ऐसी है कि हमें बहुत संतुष्टि रहती है। थोड़े में, ज़्यादा में, कम में, अच्छे में, बुरे में, किसी भी हालातों में, जो होना चाहिए। हमने जो सीखा है कि आपको पानी की तरह होना चाहिए कि जहाँ ढाल देखी वहाँ चले गए, जहाँ जगह देखी वहाँ अपनी जगह बना ली और यू शुड बी लाइक ए प्लास्टिसिन, यू शुड बी लाइक ए वाटर कि जिस भी बर्तन में आपको डाला, आपने वो पानी ने वो शेप ले ली। तब आदमी को सक्सेसफुल मिलती है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नाक नोच, निचली और ऊँची ऐसी बातें करेंगे, तो इतना लोग जो हैं वो एडजस्ट करने के काबिल नहीं होते हैं और आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, आपको लोग बुरा भला कहते हैं। तो बेहतर है कि हालातों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करिए। ये आपकी सक्सेस का भी कारण बन जाता है। सो बीइंग अ यूथ, हम आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए? देखिए, मैं तो आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। मैं कभी कविताएं लिख लेता हूँ, कभी मैं गीत गा लेता हूँ, कभी मैं गाने गा लेता हूँ और कभी मैं फिल्मी गानों को गुनगुना लेता हूँ। कभी नेशनल, आई एम अ वेरी नेशनलिस्ट एंड पेट्रियोटिक, मैं देशभक्ति के गाने गा लेता हूँ और यहाँ सुन भी लेता हूँ तो मेरे अंदर एक नया जोश, एक नई लगन और एक नई उम्मीद पैदा हो जाती है और वही मुझे आगे बढ़ाती है। और बहुत ज़रूरी है अपने आप को म्यूज़िक के साथ जोड़ना, ये मैं आपको बताऊँ। और ख़ास तौर पे हमारे जो हिंदी गाने हैं और ख़ास तौर पे हमारी हिंदी फ़िल्में गाने हैं, तो उन्हें सुनकर आप बहुत प्रोत्साहित हो सकते हैं। और मोहब्बत कैसे करनी है, लोगों को प्यार कैसे करना है, लोगों के साथ कैसे जीवन व्यतीत करना है, त्योहार कैसे मनाने हैं, ये सभी कुछ तो आपको फ़िल्में सिखा देती हैं। तो क्यों ना हम अपनी फ़िल्मों से अच्छी-अच्छी बातें सीखें। जी सर, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा होगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में से, पुराने बहुत, गाने में? बहुत हैं, शायद एक मैं नहीं बोल पाऊँगा। कोई एक गुनगुनाना चाहे तो? मैं आज तो गला ही बहुत खराब है। लेकिन इतना जानता हूँ कि जितनी जैसे मुझे पुराने गाने ज़्यादा पसंद हैं। हकीकत में ये है कि जो बहुत सारे गाने मुकेश के हैं, वो गाने मैं काफ़ी देर तक सुनता रहा, काफ़ी दिनों तक सुनता रहा। नई नई पिक्चरों के गाने भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन पुरानी गानों में वो मेलोडियस थे, थोड़ी-सी धुनें ज़्यादा सुरीली और रंगीली थीं। अभी ढोल-ढाल ज़रा ज़्यादा है। लेकिन आज के युग के हिसाब से बहुत खूबसूरत गाने बन रहे हैं और मुझे मुझे म्यूज़िक पसंद है एज़ अ सच, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, चाहे फ़ॉरेन लैंग्वेज है। मैंने म्यूज़िक पे बहुत तवज्जो दिया है और शायद यही वजह है कि इस पूरी मोहब्बत ने, संगीत के प्रति जो मेरी मोहब्बत रही है, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं एएफटी के अंदर स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी खोलूँ और अब हमारा स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी बहुत अच्छा चल रहा है।
बल्कि आपके यहाँ आने से पहले मैं जो जिस वेबिनार पे बैठा था, वो मैं अभी प्रोग्राम देख रहा था, हमारे स्टूडेंट्स का आज लाइट म्यूजिक का प्रोग्राम था और बहुत खूबसूरत वो गाना गा रहे थे सभी लोग। मैंने वहाँ से इजाज़त ली, मैंने कहा भाई मुझे मिनी भाटिया जी से मिलना है, तो मैं वहाँ से निकला और यहाँ आ गया। जी सर। सर आप आज के यूथ के इनोवेटिव आइडियाज को कैसे एनकरेज करते हैं? आज का यूथ वो रूढ़िवादी तरीकों से काम नहीं करना चाहता है, वो अपने नए आइडियाज लेकर आते हैं कि हम इस तरह से काम करना चाहेंगे, और देखने में आता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके आइडियाज को दबा देते हैं। तो आप कैसे एनकरेज करते हैं आज के यूथ को? नहीं, वैसे तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। हकीकत ये है कि ये वक़्त है जब हमें नए लोगों को और ख़ास तौर पे आज के यूथ को वी हैव टू एनकरेज अ लॉट, वी हैव टू मोटिवेट देम, वी हैव टू सी टू इट दैट ऑल दैट व्हाट दे हैव इन माइंड मस्ट बी एक्सप्रेस्ड वेल एंड शुड बी ऑन द टेबल, शुड बी ऑन द पेपर, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन व्हाट आइडिया कैन क्लिक एंड इट कैन टेक यू टू एब्सोल्युटली अ डिफरेंट हाइट। तो हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर हम खोल रखे हैं अपने पूरे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जहां पर हमारे स्टूडेंट आकर नए आइडियाज डेवलप करते हैं, रिसर्च करते हैं। हमारा अपना रिसर्च सेंटर है, इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब, इंटरनेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग फोरम, इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फोरम, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फोरम। इन सब के अंतर्गत हम लोग नए लोगों को मौका देते हैं आगे आने का, प्लेटफॉर्म पे चढ़ के बात करने से लेकर और टेलीविजन अपीयरेंस, एंकरिंग अपीयरेंस, रेडियो अपीयरेंस, पूरा मौका देते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो मोटिवेट रहें, नई चीज सामने आए, और अगर जरूरत पड़ती है तो उसके ऊपर समय और पैसा लगाकर उसको आगे डेवलप करने की भी कोशिश करते हैं। और ऐसी बहुत सी नई चीजें सामने आती भी हैं। साउंड आपने बंद कर दिया। हाँ जी। सर आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को या इमोशंस को अपने डिसीजन मेकिंग पे कैसे इफेक्ट नहीं होने देते हैं? डिसीजन मेकिंग को कैसे अपनी पर्सनल फीलिंग से अलग रखते हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। होता क्या है कि जब आप नए नए बिजनेस में आते हैं तो आपको गुस्सा भी ज्यादा आएगा, आप भावुक भी हो जाएंगे, आप रो भी पड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त यू आर नॉट अकस्टम टू हैंडल योर ओन इमोशंस सो इजिली। But with practice, with time, you learn to control your own personal emotions for business. और होता है, शुरू शुरू में मैं भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाता था, बहुत ज्यादा अटैच हो जाता था लोगों से, स्टूडेंट से। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बिल्कुल ठेस सी लगती थी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि आपको अभ्यास हो जाता है, आप सीखना शुरू कर देते हैं कि जिंदगी के अंदर कोई भी दो लोगों की एक सी विचारधारा नहीं हो सकती है। अपने घर में चार भाई बहन होते हैं, उनकी विचारधारा अलग होती है, उनका खाने का ढंग अलग होता है, सोच अलग होती है, पहनावा अलग होता है। तो आप कैसे इतने बड़े हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोगों को एक साथ एकत्र कर सकते हैं? वो अगर कर सकते हैं तो वो एक्चुअली तो भाषा एक ही है, वो है इमोशंस की। और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अगर आप दूसरों की इमोशंस को भाव देंगे तो आप ज्यादा कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो वो इमोशंस आपको दबानी ही पड़ती हैं और आप बहुत ज्यादा उनका उल्लेख या दिखावा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। तो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा बहुत खूबसूरत देश है। भारत दुनिया में एक नया मकाम हासिल कर चुका है। पिछले कुछ सालों से हम लोग और भी ज़्यादा उभर के ऊपर आए हैं। ये हमारे इनोवेटिव आइडियाज़, हमारे ये क्रिएटिव आइडियाज़ और ये जो एक्सक्लूसिविटी है इस पूरे देश के कल्चर की, उसने इसको दुनिया के बाकी 196 मुल्कों से बिल्कुल अलग रखा है, ऊँचा रखा है। और यही वजह है कि आज देखिए कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कोरोना वायरस का इंजेक्शन बनता है, और सिर्फ बनता ही नहीं है, ये हमारा कल्चर है कि अपने को हल्का सा और सताकर हम लोग दुनिया की सेवा करने के लिए फिर तैयार खड़े हो गए हैं।
ये हमारा कल्चर है और इस सारे कल्चर को हमें अडॉप्ट करना है, उसको स्वीकार करना है, उसके साथ चलना है और हमारे जो बड़ों को इज्जत दें, छोटों को प्यार दें, देश के प्रति एक आपकी बड़ी जबरदस्त जो है भावना होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के वाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। तो अपने बहुत अपने देश पे बहुत बढ़िया। फक्र होना जी चाहिए, जी। ऐसा वो मेरा मानना आज की जनरेशन को ये चीज मतलब सीखनी पड़ेगी कि सबसे पहले जो आपके पास है आप उसके ऊपर फक्र करें, ज्यादा देन कि हम दूसरी कंट्रीज को देखें कि वहाँ क्या मिल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है। हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जिसको हमें अवेल करना चाहिए। और सर है। सबसे लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ज़िंदगी बड़ी हसीन है और परमपिता परमेश्वर ने आपको जीने के लिए दी है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया के अंदर बहुत सारे सुख और आराम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको अपनी पॉकेट देखनी है। कट द क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द साइज़, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ओल्ड प्रोवर्ब, उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर। और उसको ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, हर स्टेज में, हर उम्र में और हर सेगमेंट के अंदर थोड़ा-थोड़ा समय, टाइम और पैसा, पदार्थ, अपनी एनर्जी दीजिए ताकि दुनिया के हर सुख और आराम का आप फ़ायदा उठा सकें। अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे सिटीज़न बनने के बाद फिर एक अच्छे ह्यूमन बनिए। लोगों की सेवा, देश की सेवा, इसे अपना प्रथम धर्म मानिए और जात-पात और जो नकली विभाजन जिन्हें में कहा जाता है, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इनसे दूर रहिए, बच के रहिए। परमपिता परमेश्वर ने सबको एक जैसा इंसान बनाया है। हर इंसान के प्रति, हर जानवर के प्रति, हर पेड़-पौधे के प्रति थोड़ा-सा प्यार, थोड़ी-सी सद्भावना लेके चलिए। कंपैशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन लाइफ। हैव फेथ इन पीपल, ट्रस्ट पीपल, बिलीव इन देम, help them, support them, encourage them, and the whole world you will find is so beautiful to live on. Thank you so much, sir, for coming to our show and sparing your time for us. Thank you so much. Thank you very much. Thanks a lot. Thank Thank you, you sir. very much for inviting. Thank you.